الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی احکام الحاکمین، رب الکائنات ہم سب کو آج عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب کی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ. برادران اسلام، وقت بہت ہی مبارک ہے، خاص کر کے آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور ابھی یہ جو آج ہے 2 تاریخ رجب المرجب، رجب مہینہ کے 2 تاریخ ہے آج. یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو ہمارے آقا سرکار دو عالم سید الدارین شفیع المجرمین رحمت اللہ العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے. وہ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا، اللہ برکت نازل فرما، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے مہینہ میں، وبلغنا، اور اس کو پہنچا دے، رمضان مکمل کر دے رمضان تک. یعنی اے رجب کے بعد دیکھیں آپ، اے رجب مہینہ ہے، رجب کے بعد جو اگلے مہینہ ہے یہ ہے شعبان، شعبان کے بعد جو مہینہ ہے یہ ہے رمضان المبارک. تو یہ رجب مہینہ بہت ہی مبارک. اور تھوڑا سا اور آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، کیونکہ درس حدیث ہے اس لیے میں حدیث کے سلسلہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اول جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے قرآن الکریم. معجزہ اول یعنی سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن الکریم نازل فرمائی. اس پر اب قرآن الکریم کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن الکریم نازل فرما کے یہ کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ آئے تو او معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجب کے مہینہ میں ہوا تھا، 27 تاریخ 27 رجب. تو یہ دیکھیں یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا. تو یہ
रजब महीना जो है ना बहुत ही मुबारक है। और थोड़ा सा इस रजब महीना के बारे में आप हजरात के सामने बात करो तो देखिए कि अरब में 4 महीने बहुत ही उनके पास मुरज्जब थे, बहुत ही 4 महीने में कोई किस्म की झगड़ा फसाद लड़ाई किसी के साथ कोई किस्म की फसाद वगैरह नहीं करते, बहुत इज्जत करते थे। उन 4 महीनों में से एक महीना ये है रजब, और बाकी 3 महीना एक है मुहर्रम और एक है जिलक़द और एक है जिलहज। ये 4 महीना अशरुल हुरुम जिसको कहा जाता है, ये 4 महीनों में से एक महीना है रजब। तो ये रजब के महीना में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको, देखिए भाई ये 20 मिनट 25 मिनट हम बैठेंगे, ये दर्स हदीस है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ के बारे में हम जिक्र कर रहा है। हम दुनिया में कोई बातें नहीं कर रहा है, इस पे बैठे आपने जिंदगी के लिए हम 24 आवर्स में हम खुद सोचे कि कितने घंटे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए स्पेंड किया है, हमने कितना वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, ये अपने लिए है। एक एक नेकी के लिए जिंदगी आप मैदान महशर में जब घूमेंगे कोई आपको एक नेकी नहीं देने वाला, उधर सोलिसिटर भी नहीं है, उधर मैदान महशर में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िमान शुरू करेंगे तो उधर सोलिसिटर भी नहीं है आपके पास होगा, कोई वकील नहीं होगा आपके पास, कोई आपके पास एडवाइस सेंटर पे आप नहीं जा सकते, कोई एडवाइजर भी नहीं होंगे उसके उस वक्त। आपको आपके जो नामाए अमल एक स्वाब, एक अदना स्वाब के लिए, एक थोड़ा सा नेकी के लिए कि वो यज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारे नामाए अमल को नापेंगे। ये नहीं है कि इस बंदा ने 40 साल इबादत किया और 20 साल नहीं किया उसको जन्नत में दो, हिसाब ऐसा नहीं है। मैदान महशर में हिसाब ऐसा नहीं होगा। मैदान महशर में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हिसाब करेंगे मेरे भाइयों, क्योंकि ये वही यज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, बुखारी शरीफ में लंबा एक तर्जुमातुल बाब में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, वो यज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, अमल को नापेंगे। कोई एक दिन मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन इसलिए ये वक्त को कीमत समझे, कीमती वक्त समझे, ये बहुत ही कीमती वक्त है हमारे पास, टाइम है, अब फुर्सत है, वक्त है, इसका कदर करें मेरे भाइयों। आज मैंने आप सब हजरात के सामने एक हदीस शरीफ पढ़ा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहुन नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा मोमिन वो है जिसके जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये आजकल हम मुसलमान आपस में 2 भाई एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे का ग़ीबत, शकवा, गीला शुरू कर देते हैं। ये हमारा फैशन बन गया आजकल, और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसकी वजह से हम मुसलमान आजकल पूरा के पूरे दुनिया पे आप नजर करें, पूरे दुनिया पे आजकल हम मुसलमान तबाह हो रहा है। हालांकि मुसलमान कितने करोड़ों हैं, देखिए आप जरा सा, क्योंकि मुसलमानों में आज का तबाही का यही है कि आपने मुसलमान का आपस में लड़ाई करते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कोई मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे की कोई कदर नहीं है। हालांकि एक मुसलमान आपस में भाई है। मुसलमान वो चाहे जहां से हो, वो काला हो, खूबसूरत हो, वो पढ़े लिखे हो, नहीं अनपढ़ हो, जो भी है, मालदार हो, गरीब हो, मिस्किन हो, जो भी है, वो मुसलमान कलिमा वाला इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन वो भाई है, मोमिन आपस में भाई है, मोमिन वन नेशन, वो जो जहां से भी है, जिधर से भी है, जो भी है। तो इसलिए मुसलमान आपस में भाई होना चाहिए। मुसलमान के एक मुसलमान हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की 13 नंबर हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। आप उस वक्त तक कामिल मुमिन नहीं बन सकते जब तक के आपके लिए जो पसंद करे दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। आप आजकल हम मुसलमान एक मुसलमान के साथ गीला करते हैं, शिकवा करते हैं, एक दूसरे के साथ जलसी करते हैं, हालांकि ये मुसलमान में होना नहीं चाहिए। मुसलमान है, मुसलमान आपस में मील मोहब्बत प्यार। देखिए ग़ज़वा मौता में कि पानी के लिए एक भाई ने कहा मुझे पानी चाहिए, वो पानी ले आया तो उससे उसको पीने लगा, क्योंकि उसका जान निकल रहा था। उस वक्त वो पीने लगा तो
دوسرے سے آواز آئی کہ پانی چاہیے، تو وہ اس نے کہا مجھے نہیں، وہ میرا دوسرے بھائی کی ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ تو وہ دوسرے کے پاس گیا، جانے کے بعد وہ دوسرے بھی پینے کے لیے بالکل تیار ہو گیا کہ ابھی پینا ہے، تو تیسرے کے ایسے آواز آیا کہ بھائی مجھے پانی چاہیے، تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں، میرے دوسرے بھائی کے دے دو۔ کتنا قدر اس وقت صحابہ کرام کے اندر تھا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آج کل ہم میں سے یہ قدر نہیں ہے۔ تو پھر جب پہلے کے پاس آیا وہ پانی پلانے والا، دیکھا وہ بھی شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی، تیسرے بھی، کیونکہ جان دے دیا اپنے مسلمان کی عزت کے لیے، مسلمان کی قدر کے لیے۔ لیکن آج کل ہم میں سے مسلمان بھائیوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے قدر نہیں ہے، میل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، جلسی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کیونکہ ایک بندہ گیا تھا کوئی کھیتی کرنے کے لیے، تو اس کا ایک پتھر مل گیا، تو وہ پتھر لے کے آیا نا، تو پتھر لے کے جب آیا، آ کے اس نے دیکھا اس میں ایک کرامتی ہے۔ کیا کرامتی ہے کہ اس پتھر پہ اگر آپ نے ایسا یہ کرے، اس کو تھوڑا سا ضرب کرے ایسا ہاتھ سے، تو اس پہ ایک ہو، فرض کرے آپ کو ایک ہو تو آپ کا جو نیبر ہے اس کو دوگنا ہو جائے گا۔ تو وہ اس نے سوچا مجھے اگر ایک ہو تو اس کو تو دوگنا، اگر مجھے 1000 ہو تو اس کو تو 2000 مل جائے۔ تو ایسا اس نے دیکھا کہ وہ میں 1000 ہو تو دوسرے کو 2000 مل جائے، تو یہ تو اچھا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے 1000 ہو تو دوسرے کو 2000 ہو جائے، نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے دیکھیں کتنا آپس میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ مسلمان کتنا خرابیات، ہمارا سوچ، ہمارا انٹینشن اور ہمارا دماغ کی جتنے ہمارا سوچ کیسا یہ ہے، خراب ہے، تھوڑا سا اس واقعہ سے یہ کرے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اگر مجھے ایک ملے تو دوسرے کو تو 2 ملنا ہے، تو چلو میرا ایک دفعہ اس نے ایسا مساج کیا، ایسا گشا یہ کیا، اس نے ضرب لگایا، تو کہتا ہے کہ میرا ایک آنکھ خراب ہو جائے گا، ایک آنکھ اندھا ہو جائے گا، ایک آنکھ۔ تو اس نے اس لیے کیا کہ دوسرے جو نیبر ہے نا اس کو دونوں آنکھ خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے بھائیوں، تھوڑا سا سوچے کہ آج کل مسلمان، حالانکہ مسلمان کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ چلو اس کے اچھا نہ ہو۔ تو آپس میں آج کل مسلمان اپنے بھائی جو ہے نا یہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ سچا مسلمان وہ ہے جو جن کے ہاتھ سے، زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل کچھ لوگ ایک بات میں جو زبان کا بات کرتا ہو، دیکھیں آپ حضرات کہ زبان سے بہت کچھ بھول دیتے ہیں ہم، حالانکہ ہم نے کافیہ عربی ایک گرامر کی کتاب ہے، کافیہ ہدایت النحو کے بعد ایک کتاب عربی گرامر کے پڑھائی جاتے ہیں، اس کو کافیہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک شعر تحریر سمپٹ اس کا شرح ہے، تحریر سمپٹ پہ ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس شعر کا ترجمہ ہے کہ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کے زخمی کا علاج ہے، لیکن آپ کے زبان سے جو زخمی کرتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرض کر کسی نے ادھر چھری سے یہ کر دیا، آپ کو ضرب کر کے آپ کا ادھر کوئی نقصان کر دیا، آپ کو تھوڑا سا زخمی کر دیا، یہ اس کے لیے علاج ہے۔ لیکن زبان سے جو زخمی کریں گے، آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی شکایت کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کی گیلا کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے۔ ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، جو آپ کے لیے پسند کرے وہ آپ کے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، جو آپ کے لیے ناپسند کرے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی ناپسند کرے۔ آج کل یہ ہمارے آپس میں ایسا مینٹلٹی جب تک نہ ہو مسلمان کبھی فتح نہیں کریں گے۔ اس مسلمان کے فتح کے لیے اپنے اخلاق کو، ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رعد کے 11 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بدلیں گے نہیں، اس کو چینج نہیں کریں گے جب تک وہ خود چینج نہ ہو۔
खुद चेंज ना हो मेरे भाइयों, हमको बदलना पड़े, हम चेंज होना है। हमें चाहिए कि हमारा अखलाक को अच्छा करे, क्योंकि खैरुन नास अनफअ लिन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचे। क्योंकि आजकल हम आपस में हसद करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जलसी करते हैं। कि हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद, खबरदार, बी केयरफुल, हसद से तुम बाज के रहो। हसद के क्या माना है कि दूसरे किसी के भलाई वो उसको पसंद नहीं है, दूसरे की नियामत देख के उसको पसंद नहीं करे, वो पसंद नहीं करे। आजकल हमारा फैशन, हमारा स्टाइल, हमारा मेंटालिटी, हमारा सोच, हमारा दिमाग, हमारा ऐसा ही, हम आपस में ऐसा ही हो गया। मुसलमान खास करके हिंदू देखो, एक हिंदू दूसरे हिंदू के लिए जान देते हैं, एक कुफार दूसरे कुफार के लिए जान दे देते हैं। लेकिन मुसलमान भाई देख के कहता है, चलो यार आई एम गोइंग, यू कैन डू योरसेल्फ। हालांकि मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान आपस में भाई है, जहां से जिधर से हो, अफ्रीका के जंगल से भी हो, खानदानी आसूबियत, ये वो बांग्लादेश से है, वो पाकिस्तान से है, वो इंडिया से है, वो सोमालिया से है, वो अफगानिस्तान से है, वो पेशावर से है, वो पता, ये हमारा मेंटालिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान आपस में भाई है, जहां से जिधर से मुसलमान है, भाई है। ऐसा हो, ऐसा सोच हो, ऐसा अगर हमारे इत्तेहाद हो, ऐसा आपस में हमारा मील मोहब्बत हो, प्यार हो, तो इंशाअल्लाह चलो हमसे गलती हो सकता है। अगर कोई बंदा से कोई गलती हो जाए, उसको अलहदा जाके, अकेला जाके उसको आप आराम से प्यार से कह दो, मेरे भाई आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज आप जरा सा उसको ख्याल रखा करें। उसको अकेला जाके अदब से, अद्दबनी रब्बी फअहसन तातीबी, अदब से समझाए। हम ऐसा करते हैं कि उसके लोगों के पास जाके शकवा करते हैं, लोगों के पास जाके हम गिबत करते रहते हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए खुद अपने आप को इस्लाह कर लो, क्योंकि हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद, तुम हसद से बाज के रहो। फइन्नल हसद याकुलुल हसनात, क्योंकि हसद हसनात को, कुछ लोग कहते हैं मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हो, हज करता हो, डोनेशन देता हो, ज़कात देता हो, सब कुछ हम कर रहा है। इस्लाम के सारे सब कानून, सब कुछ जितने इस्लाम के करना है, मुसलमान में, इस्लाम में सब कुछ मैं कर रहा हूँ। लोग ऐसा, कुछ लोगों का गुमान ऐसा है। तो मेरे भाई गुमान ऐसा है, देखो हदीस शरीफ में सरकार ने क्या फरमाया, इय्याकुम वल हसद, हसद से तुम बाज के रहो। फइन्नल हसद, क्योंकि हसद जो है ना, याकुलुल हसनात, आपके नेकी को खा लेता है। याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा, औ कमा क़ाल इस्लाम। सरकार ने फरमाया, जैसा कि आग लकड़ी हो या जो चीज आग पे डालो जला देता है, ऐसा ही आपके नेकी, जो आप नेकी कर रहा है, आपके नेकी को बिल्कुल खा रहा है, जला दे रहा है, खत्म कर रहा है, कोई बाकी नहीं है हिस्सा। ला सहमा इंदल्लाह, अल्लाह के पास कोई सहमा नहीं है, अल्लाह के पास कोई आपका हिस्सा नहीं है, अल्लाह के पास उसका कोई आदर नहीं है। तो मेरे भाई, क्योंकि हम एक बंदा उधर गया, जाके पूरा के पूरा दिन उसने मेहनत करके 1 पाउंड 50 पैसे करके कमाया, फंस करके पॉकेट में डाला, लेकिन पॉकेट के वो जो है ना, सी हुई नहीं है। पॉकेट के जो सुराख है ना, एक सुराख है पॉकेट में, उस सुराख को नीचे से सुराख है, उस सुराख को बंद नहीं किया उसने। नीचे से पॉकेट में, जेब में एक सुराख है, उस सुराख को उसने बंद नहीं किया। पूरा दिन उसने 1 पाउंड 50 पैसे जो भी है जेब पे डाला। आखिरी टाइम पे उसको कुछ मिले? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि बिल्कुल उसके सुराख से सब निकल गया। तो नेकी हम कर रहा है, बेशक मोमिन मुसलमान आजकल माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, डोनेशन भी करते हैं, एक दूसरे को मदद भी कम थोड़ा बहुत करता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे करना है, करने की तरह नहीं कर रहा है, तो आखिर में बिलाखिर देखेंगे एंड ऑफ टाइम 0, नथिंग लेफ्ट। जैसे कि सुराख से सब निकल गया, ऐसा
वैसा ही हमारे नेकी भी सब निकल जाता है मेरे भाइयों। तो मैं आप सब हजरात को यही कहना चाहता हूँ कि हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नेकी करो और नेकी करके नेकी को संभाल के रखना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कैसे उन्होंने मशक्कतें उठाई, फिर भी एक दूसरे आपस में एक दूसरे के कोई गिबोत, कोई शिकवा, कोई किस्म की जेलसी, कोई किस्म की दूसरे के साथ हसद नहीं किया। क्यों? क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने लिए जो पसंद करता दूसरे भाई के लिए। हम भी ऐसा बने मेरे भाइयों, ऐसा अगर आप बने ना, फर्ज करे आपका दिल ऐसा बना लो। कुछ हजरात हमें कहते हैं कि मैं तो करता हूँ लेकिन दूसरे भाई नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसा मेंटालिटी बना लो, आप ऐसा हो जाओ, तो इंशाल्लाह मैं आप सब हजरात को कह रहा हूँ, इंशाल्लाह जो भाई आपके साथ जेलस करने के लिए सोचे वो भी अल्लाह ताला उसको भी उसके जेलसी से आपको बाज रखेंगे। वो आपके साथ जेलसी करने नहीं पाए, क्योंकि वो जेलस करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बिल्कुल उसके मेंटालिटी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंद कर देंगे। उसके जेलसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिफाजत करेंगे, जरूर हिफाजत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिल सच्चा है। हर चीज, जैसे कि आप हजरात को पता है बुखारी शरीफ के नियत सही होना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत सही होना चाहिए। दिल में ये रखे कि अल्लाह मैं तो उसको प्यार कर रहा हूँ, वो मेरा मुसलमान भाई है इसलिए मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ना कोई जेलसी कर रहा हूँ, चलो वो जो मेरे साथ जो मर्जी करे। ये सभी कुछ लोग हमारे पास आते हैं, क्या हमसे मिलते हैं, कभी कभी कहते हैं मैंने आपके साथ इतना बदतमीजी किया लेकिन आपने तो कोई बदतमीजी मेरे साथ नहीं किया। आप सब्र कर लो, उसके साथ बदतमीजी करने की क्या फायदा? उसके लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे भाई को हिदायत नसीब करो। अगर कोई भी आपके साथ कोई बदतमीजी करे, कोई किस्म की आपके साथ आपको जुल्म करे, आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे भाई को हिदायत नसीब फरमा, जैसे सहाबा किराम ने किया। इसलिए मेरे भाइयों ये बहुत ही मुफीद है, और अपने जुबान को बहुत ही कंट्रोल रखना। अपने जुबान, आजकल जुबान बहुत गंदे गंदे गाली दे देते हैं एक दूसरे को। कोई आता है वो जो हाथ से, हाथ का मतलब ये नहीं है हदीस शरीफ में जो यद ही कहा है, हाथ का मतलब ये नहीं है कि जुबान कर रहा है। हाथ का मतलब ये होता है कि आपने कलम से उसको बहुत कुछ कर रहा है। ये आपका कलम भी आपके लिए आप हाथ से इस्तेमाल कर रहा है ना। हाथ का मतलब ये होता है कि आपने मुसलमान भाई पर हाथ उठाने के लिए, ये भी तशरीह में आया है कि मुसलमान भाई पर हाथ उठाने पर आप ये नहीं सोच रहा है कि मैं मेरे मुसलमान भाई को मार रहा हूँ, आपकी मर्जी के खिलाफ आप उसको कत्ल कर देता है। ये क्या बात है? मुसलमान आजकल ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सच्चा मुसलमान होने की तौफीक नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और खास करके हमारे जो बच्चे, इंशाअल्लाह अगले किसी दर्स हदीस में मैं बच्चों के बारे में तकरीर करूंगा, क्योंकि बच्चों को भी ये समझाए आपस में जाके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक नसीब करे, आमीन। मुख्तसर दुआ कर लेता, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा व अददा मा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़इलि वल अमलि वन निय्यति वल इख़लासि वल अग़राज़ि वल इबादति या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीना फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अरहमिल मुस्लिमीना फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मुस्लिमीना फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल वालिदैन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बल्लिगना अल-फज़्ल व सलावात तस्लीम इला रौज़त हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।